Assalamu alaikum class 10th. How are you? Hopefully you are fine. As you know, the current unit is nuclear physics, in which we are going to discuss about the transmutation. Class, you know what is meant by the radioactivity. Radioactivity means the emission of the alpha particles, beta particles or the gamma rays from the atomic nuclei. And what is radioactive decay? Radioactive decay is a process by which the nuclei of the nuclide emit alpha, beta or gamma rays. In the radioactivity, the nuclide undergoes a transmutation, converting to another nuclide. Okay, come toward the transmutation. The process in which a parent unstable nuclide changes into a more stable dotted nuclide with the emission of the radiation is called nuclear transmutation. The process in which a parent unstable nuclide changes into a more stable dotted nuclide with the emission of the radiation is called nuclear transmutation. Yes, girls. ये एक ऐसा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है जिसमें एक अनस्टेबल पेरेंट एलिमेंट जो है उसका न्यूक्लियाई जो है वो एक ज़्यादा स्टेबल न्यूक्लियाई में चेंज हो जाता है, जिसको हम डॉटर न्यूक्लियाई कहते हैं। और इसके साथ साथ हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी भी मिलती है और साथ आपके पास रेडिएशंस इमिट होती हैं। उन रेडिएशंस का नाम अभी हम देखेंगे क्या है। 3 टाइप्स की रेडिएशंस होती हैं। अब सबसे पहले तो हम देखते हैं कि ये जो ट्रांसम्यूटेशन है ये एक ही तरह की है या इसकी टाइप्स ज़्यादा हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द ट्रांसम्यूटेशन। नंबर 1 नेचुरल ट्रांसम्यूटेशन एंड नंबर 2 आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन। इन नेचुरल ट्रांसम्यूटेशन, फॉर एग्जांपल, you can see here uranium 238 is converted into the thorium 234 and helium particles are obtained. These helium particles are actually the equal to alpha particles. Next is artificial transmutation. Artificial transmutation is done by the bombardment of a stable isotope to force it to decay. For example, nitrogen 14 is a stable isotope. It is bombarded by the alpha particle or the helium particle and it will be converted into the more another type of nuclide. There are 3 types of the nuclear decay, in which 3 types of radiations emitted. These radiations are named as alpha, beta and gamma. Alpha particles, beta particles and gamma rays. Now come toward the properties of alpha, beta and gamma rays. First of all, you can see the properties of alpha particles. It is positive charge particle. How it can be guessed that they are positive charge? In electric and the magnetic field, they are affected by the electric and magnetic field. In electric field, they move toward the negative side, and in magnetic field they move toward the south. Hence it is clear that they carry the positive charge. They has high ionization energy. Ionization energy mean ये गैसेस के अंदर से जब गुजरती हैं तो गैसेस को ये आयनाइज करती हैं. They are highly ionizing power as compared to other two. इनकी आयनाइजेशन एबिलिटी दूसरों से दोनों बाकी से सबसे ज़्यादा है. The charge of alpha particle is doubled from proton.
प्रोटॉन की निस्बत इन पर डबल चार्ज होता है। दे हैव लेस पेनिट्रेटिंग पावर, इनकी पेनिट्रेटिंग पावर सबसे कम है। पेनिट्रेटिंग पावर क्या है कि जब किसी ये मटेरियल के अंदर तक जाती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये हवा के अंदर ट्रैवल कर रही हों तो ये चंद सेंटीमीटर दूर जाकर ही ये गायब हो जाती हैं। ये किसी दूसरी चीज़ के अंदर तक बहुत कम एंटर हो सकती हैं। इनकी आयनाइजेशन पावर सबसे ज़्यादा और इनकी पेनिट्रेटिंग पावर सबसे कम है। दे प्रोड्यूस्ड फ्लोरेसेंस, जब ये किसी चीज़ पर किसी फ्लोरेसेंट एलिमेंट पर पड़ती हैं तो उसके अंदर ये शाइन पैदा करती हैं। अल्फ़ा पार्टिकल्स आर रिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, जब ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर से गुज़रती हैं तो ये रिफ्लेक्ट होती हैं। रिफ्लेक्ट मीन ये अपना सीधी चलती चलती अपना रास्ता टर्न करती हैं। और ये किस तरफ टर्न करेंगी? बिकॉज दे हैव द पॉजिटिव चार्ज, सो दे विल मूव टूवर्ड द नेगेटिव terminal or the south pole. By the emission of an alpha particle, the charge number of parent nuclei is decreased by 2. जब एक पेरेंट एलिमेंट से एक डॉटर एलिमेंट बनता है तो क्योंकि उसके अंदर से एक अल्फ़ा पार्टिकल निकलता है इस पेरेंट एलिमेंट के अंदर से, इसलिए उसके चार्ज नंबर में पेरेंट एलिमेंट के चार्ज नंबर में 2 की कमी हो जाती है और उसके मैस में 4 की कमी हो जाती है। Okay girls, now move toward the properties of beta particles. Beta particles are negative charge particles. अब ये नेगेटिव चार्ज किस तरह से हैं? इसको भी जब हमने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर से गुजारा तो ये डिफ्लेक्ट हुए। इसका मतलब इन पर फील्ड का असर होता है। दे आर अफेक्टेड बाय द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। और हमें ये पता कैसे चला कि इन पे नेगेटिव चार्ज है? बिकॉज दे आर डिफ्लेक्टेड टूवर्ड द नेगेटिव साइड व्हेन दे मूव थ्रू द electric field, and when they move through the magnetic field when they move through the electric field they move toward the positive terminal or the positive side, and when they move through the magnetic field they move toward the north pole. Hence it is obviously they have the negative charge on them. It is negative charge electron of high energy. एक्चुअली बात की रिसर्च से ये पता चला कि ये बीटा पार्टिकल्स क्या हैं? बीटा पार्टिकल्स आर एक्चुअली द हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन हैं। दे आर फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हैविंग द हाई एनर्जी. इट हैज़ लो आयनाइजेशन एनर्जी. अभी हमने पिछले में पढ़ा था अल्फ़ा पार्टिकल्स की आयनाइजेशन एबिलिटी सबसे ज़्यादा है, उससे कम आयनाइजेशन एबिलिटी है बीटा पार्टिकल्स की। ये जब गैस के अंदर से गुजरेंगे तो उसको आयनाइज कर देंगे लेकिन अल्फ़ा की निस्बत कम करेंगे। दे हैव हाई पेनिट्रेटिंग पावर. अब पिछले में हमने अल्फ़ा के जिक्र किया था, उनकी पेनिट्रेटिंग पावर सबसे कम है, जबकि बीटा की पेनिट्रेटिंग पावर अल्फ़ा की निस्बत ज़्यादा है. इट इज़ रिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड. ये अभी हमने डिस्कस किया. इट ट्रेवल्स अबाउट 1/5 ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट. इनकी स्पीड कितनी है? हमारी स्पीड ऑफ लाइट से 5 गुना कम है. A negative beta decay result increasing the atomic number of parent nucleus by 1, but mass number remains constant. आपको पता है कि जब अगर हम इसको कहते हैं कि ये फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इलेक्ट्रॉन्स का मैस इतना निग्लिजिबल है कि हम उसको कंसीडर ही नहीं करते और उस पर -1 चार्ज होता है. इसलिए जब एक पेरेंट एलिमेंट का डिके होता है और वो डॉटर एलिमेंट में कन्वर्ट होता है तो उसके चार्ज नंबर में 1 एडिशन हो जाता है, जबकि उसके मैस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता. A positive beta decay result decreasing the atomic number by 1 but mass number remains the constant.
Next is gamma rays. The properties of gamma rays are electromagnetic radiations, has no mass and no charge. अब कैसे पता चलता है कि इस पर कोई चार्ज नहीं है? जब हमने प्रीवियस दोनों को गुजारा इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड के अंदर से, तो उन्होंने टर्न लिया, एक ने पॉजिटिव की तरफ और एक ने नेगेटिव की तरफ। इसी तरह गैमा रेस को जब इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड के अंदर से गुजारा गया तो ये बिल्कुल स्ट्रेट चलती रहीं, इन्होंने किसी साइड पर भी टर्न नहीं लिया। सो दे आर नॉट affected by the electric and magnetic field, hence they have no charge. Their speed is equal to the speed of light. You know, light is a form of, light travels in the form of waves and they are electromagnetic in nature also. Hence the gamma rays are also electromagnetic because their speed is same as of speed of light. It have very high penetrating power. अब पेनेट्रेटिंग पावर का हम बार बार जिक्र कर रहे हैं। अल्फ़ा की सबसे कम थी, बीटा की उससे ज़्यादा और गैमा की पेनेट्रेटिंग पावर सबसे ज़्यादा है। इसी तरह आयनाइजेशन एबिलिटी अल्फ़ा की सबसे ज़्यादा थी, बीटा की उससे कम और गैमा की आयनाइजेशन पावर सबसे कम है। गैमा रेज आर मास लेस photons. Their emission will cause no change in either mass or change number, mass number और change number. जब किसी एलिमेंट के अंदर से गैमा रेज डिके करेंगी, निकलेंगी, इमिट करेंगी, तो उसके मैस नंबर पर या उसके चार्ज नंबर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अंडरस्टैंड गर्ल्स? वी हैव डिस्कस अबाउट द 3 types of the radiations named as the alpha, beta and gamma. Now come toward another interesting topic which is named as half-life. First of all, see the definition of half-life. The half-life of radioactive substance is the time interval during which half of the given number of radioactive nuclei decay and half remains undecayed. वो टाइम पीरियड जिसके दौरान किसी भी रेडियोएक्टिव सब्सटेंस का गिवन सैंपल, उसके पार्टिकल्स हाफ डिके कर जाएं और हाफ बाकी बच जाएं, तो उतने टाइम को हम कहते हैं उस सब्सटेंस या उस एलिमेंट का, रेडियोएक्टिव एलिमेंट की हाफ लाइफ। ओके गर्ल्स, वो टाइम ड्यूरेशन जिसके दौरान कोई भी रेडियोएक्टिव एलिमेंट डिके करके हाफ क्वांटिटी डिके कर जाए और हाफ अनडिके बाकी बच जाए, तो उस टाइम ड्यूरेशन को हम उसकी हाफ लाइफ कहते हैं। During each half-life, half of the remaining radioactive substance decay into atoms of a new element. For example, you can see here thorium-234 is converted into the radium-234 having the different charge number and the beta particle has been decayed, where thorium and protactinium are showing the reaction in which thorium is converted into the protactinium and there is beta decay. Now, after a time interval equal to 1 half-life, there are n/2 radioactive nuclei remaining. अब हमने क्या अभी जिक्र किया था? फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास ओरिजिनल क्वांटिटी या गिवन सैंपल की जो इनिशियल क्वांटिटी है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं n0 से। आफ्टर फर्स्ट हाफ लाइफ वो टोटल क्वांटिटी, लेट्स सपोज आपके पास 100 ग्राम थी, तो उसका हाफ रह जाएगा जिसको हम शो करेंगे n0/2 से। n0/2 विल बी लेफ्ट ओवर आफ्टर फर्स्ट हाफ लाइफ। जी,
क्या हुआ, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास 100 ग्राम ऑफ एनी गिवन रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, तो 100 ग्राम से जिस टाइम के दौरान 100 ग्राम से बाकी 50 ग्राम बच जाएगा और 50 ग्राम डिके कर जाएगा, उस लाइफ टाइम को या उस टाइम पीरियड को हम उस गिवन सैंपल का या गिवन एलिमेंट का क्या कहेंगे, हाफ लाइफ। और जिस दौरान वो ओरिजिनल क्वांटिटी से हाफ़ हो जाए यानी 100 से 50 तक आ जाए, तो जितना टाइम लगेगा वो होगी उसकी फ़र्स्ट हाफ लाइफ। अब फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद जब हम अगला आप टाइम काउंट करना शुरू करेंगे, दैट विल बी कंसीडर्ड एज सेकंड हाफ लाइफ। गर्ल्स, सेकंड हाफ लाइफ के बाद में आपका एलिमेंट पूरा का पूरा ख़त्म नहीं होगा, बल्कि अब देखें क्या होगा। हमने इनिशियल उसका काउंट रेट क्या लिया, 100 ग्राम से शुरू किया। फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद वो कितना हो गया, 50 ग्राम। अब 50 ग्राम सारा का सारा अगले टाइम में डिके नहीं कर जाएगा, बल्कि अगली हाफ लाइफ के बाद 50 से बाकी 25 डिके कर जाएंगे और 25 आपके ग्राम्स बाकी बच जाएंगे। आफ्टर 2 हाफ लाइव्स, हाफ ऑफ दीज रिमेनिंग न्यूक्लियाई have decayed and not by 4 radioactive nuclei are left. And after this process, the third half-life will be started. After 3 half-lives and not by 8 are left, and so on. In general, after n half-lives, the number of the undecayed radioactive nuclei remaining is n equals n naught into 1 by 2 power n, where n can be an integer. Let's suppose 1, 2, 3 up to so on. 1 represents the first half life, 2 represent the second half life, 3 represent the third half life, and so on. जी, हाफ़ लाइफ का समझ आ गया आपको। हाफ़ लाइफ क्या है, हाफ़ लाइफ वो टाइम ड्यूरेशन होता है जिसमें कोई भी रेडियो एक्टिव मटीरियल या रेडियो एक्टिव एलिमेंट का अगर आपको सैंपल दे दिया जाए, उसकी कोई क्वांटिटी दे दी जाए, तो लेट्स सपोज 100 ग्राम आपके पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट मौजूद है, तो जितने टाइम के बाद आपका 100 से 50 डिके कर जाए और 50 बाकी रह जाए, उस टाइम इंटरवल को हम उस रेडियो एक्टिव एलिमेंट की हाफ़ लाइफ कहेंगे। फ़र्ज़ करें वो 100 ईयर्स हैं, तो एक 100 ईयर के बाद 100 से आपके 50 ग्राम्स बाकी रह जाएंगे। अगले 100 ईयर्स के बाद 50 से 25 बाकी रह जाएंगे। ये हुई सेकंड हाफ़ लाइफ। फिर थर्ड हाफ़ लाइफ क्या होगी, 300 ईयर्स। 300 ईयर्स के बाद आपके 25 से भी हाफ़ करते जाएंगे। इस तरह रिमेनिंग क्वांटिटी का हर अगली हाफ़ लाइफ में हाफ़ होता जाएगा। और फुली डिके होने के लिए किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट को अनलिमिटेड टाइम चाहिए होता है। अगर किसी की हाफ़ लाइफ बहुत ही कम हो, बहुत शॉर्ट हो, तो वो कम टाइम लेगा टोटली डिके होने में, और अगर किसी की हाफ़ लाइफ बहुत ज़्यादा हो तो उसको टोटली डिके होने में सदियां भी लग सकती हैं। ठीक है, हर एलिमेंट की अपनी हाफ़ लाइफ होती है। हाफ़ लाइफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आपके गिवन सैंपल से। एक्टिविटी का जो प्रोसेस है कितना तेज़ होगा, ये डिपेंड करता है गिवन सैंपल की क्वांटिटी पर। अगर गिवन सैंपल की क्वांटिटी ज़्यादा है तो डिके रेट भी ज़्यादा होगा, और अगर गिवन क्वांटिटी आपकी बहुत कम है तो आपका डिके रेट भी उसी हिसाब से स्लो होगा। समझ आ गई गर्ल्स आप सबको? जी, अगर कोई भी आपको क्वेश्चन करना हो तो आप मुझसे कर सकते हैं, और लेक्चर को बार बार देखिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये सारा का सारा यूनिट। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।